Assalamu alaikum class. I hope everyone is fine and doing well by the grace of Almighty Allah. I am fine too, alhamdulillah. Today I am with you and we are going to start a new chapter, and the name of the chapter is the cost of production. In this chapter we will study about the different concepts of cost or different types of cost. As you noticed, when we study economics, in economics we use two words very frequently, and those two words are supply and demand. We oftenly repeat these words in subject of economics because these holds the major or the vital position in this subject or any economy. So we can say that supply and demand are the two words that economists use most often. Apart from this, supply and demand are the two major and the very important forces that makes any market efficient, or it make any market to work. Or you may say that supply and demand are the forces that make market economies work. When we talk about modern economics, in modern economics we emphasize on demand, supply and equilibrium. Which equilibrium? Definitely we will talk about market equilibrium. So modern economics or the microeconomics is about supply, demand and market equilibrium. Now we need to recall the law of supply. But we have read in the law of supply that supply of a good increases when the price of the good increases. When price increases, then the supply of the goods increases ultimately, and supply curve is upward sloping. We can say that according to the law of supply, firms are willing to produce and sell a greater quantity of a good when the price of the good is high. जब price of a good high होगी तो फर्म्स क्या करती हैं, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहती हैं, वो क्वांटिटी ज़्यादा बनाना चाहती हैं उस गुड की जिसकी प्राइस हाई होती है और उसको ज़्यादा बेचना चाहती हैं. क्यों? क्योंकि इससे उनको प्रॉफिट होगा. They will earn profit by selling those goods and services whose prices are high. So this results in a supply curve that slopes upward. We need to remember that supply curve is always upward and demand curve is downward sloping. We know very well. So the firm's objective or the economic goal of a firm is to maximize its profit. What is the ultimate goal of a firm being in an economy is to maximize the profit. हमारा एज अ कंपनी, एज अ फर्म, एज एन ऑर्गेनाइजेशन और द बिजनेस होल्डर, हमारा गोल क्या होता है, हमारा मकसद क्या होता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना. सो दिस इज़ what the overview of the concept which we are going to apply in this chapter. But in this chapter we will focus on the main concepts which are about the cost. So we need to start with what are costs. In this tab we will read about or we will learn about total revenue, total cost and profit. इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? Total revenue क्या होता है, total cost and profit. And the next is cost as opportunity cost. Opportunity cost कितनी टाइप्स की होती है और उसका क्या मतलब होता है उसको रीड करेंगे. Then economic profit versus accounting profit. हम लोग इस डिफरेंस को पढ़ेंगे. economic profit और accounting profit के डिफरेंस को we understand in this chapter. So let's start. The first main point was total revenue, total cost and profit. पहला हमने यही बात की है, देखिएगा, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट. सो फर्स्ट वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट. फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टोटल रेवेन्यू. फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने 100 प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए हैं, 100 यूनिट्स ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल उनकी प्रोडक्ट थी मोटर बाइक की. ठीक है, मोटर बाइक जो हैं, मोटरसाइकिल्स या मोटर बाइक्स जो हैं वो 100 प्रोड्यूस करने का उनका टारगेट था. उन्होंने 100 मोटरसाइकिल्स या मोटर बाइक्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए. अब उसको हम लोग क्या कहेंगे? उनकी आउटपुट, प्रोडक्शन. इसको हम लोग क्या कहते हैं? आउटपुट
या प्रोडक्शन। सो ये जो उनकी आउटपुट हुई 100 बाइक्स की जो उन्होंने प्रोड्यूस किए, इसको जब वो सेल कर देंगे तो उनके पास जितना पैसा आ जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे टोटल रेवेन्यू। यानी कि इसके अंदर उनके खर्चे भी शामिल हैं, इसके अंदर से भी खर्चे निकलेंगे, यानी कि टोटल रेवेन्यू में खर्चे भी शामिल हैं। So what is total revenue? Is the amount a firm receives from the sale of its output. जितनी आउटपुट उसने बनाई उसको सेल करके जितनी अमाउंट, जितना पैसा उसके पास गया उसको कहते हैं टोटल रेवेन्यू। ये तो बात हो गई टोटल रेवेन्यू की। अब हमने नेक्स्ट चीज़ जो समझनी है वो है टोटल कॉस्ट। कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए या वो बाइक्स या मोटरसाइकिल्स बनाने के लिए हमें जो चीज़ें दरकार थी, जो स्पेयर पार्ट्स, जो लेबर और जो इलेक्ट्रिसिटी, लाइट्स का, और जो हमारा वो फार्म था जहाँ पे हम लोग, वो वर्कशॉप थी जहाँ पे हम ये चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे थे, या हमारा जहाँ पे यूनिट लगा हुआ था इसको प्रोड्यूस करने का, उसका सारा खर्चा, सबकी सब कॉस्ट जो होंगी उसको हम लोग कहते हैं टोटल कॉस्ट। और ये जो सब चीज़ें हैं लाइक रॉ मटेरियल, हमारा जो हमारे स्पेयर पार्ट्स हैं, लाइटिंग का खर्चा, रेंट का खर्चा, लेबर का खर्चा, इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट ऑफ अ प्रोडक्शन प्रोसेस। ये प्रोडक्शन प्रोसेस की इनपुट्स हैं, यानी कि इनको इन करते हैं हम, इन चीज़ों को लगाते हैं, फिर प्रोसेस होता है, सिस्टम चलता है, चीज़ें बनती हैं और बन के जो एंड प्रोडक्ट हमारे सामने आती है वो है मोटर बाइक, मोटरसाइकिल बन रहा है हमारे पास। तो मोटरसाइकिल जो एंड प्रोडक्ट फिनिश गुड हमारे पास आया, ये आउटपुट है किसकी, एक प्रोडक्शन प्रोसेस की। सो इसको आउटपुट को बनाने के लिए जितनी चीज़ें हमें दरकार हुई, जो चीज़ें हमने इस्तेमाल की एज अ इनपुट, जो चीज़ें हमने यूज़ की, उसको हम लोग, उसकी कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट। यानी कि एक चीज़ के बनाने में जितना खर्चा आया सारे का सारा, उसको हम लोग कहेंगे टोटल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट इज़ अ मार्केट वैल्यू ऑफ इनपुट्स अ फर्म यूजेज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन प्रोसेस में जो फर्म यूज़ करती है इनपुट्स, उनकी मार्केट वैल्यू को हम लोग कहते हैं टोटल कॉस्ट। मार्केट वैल्यू क्या होती है बच्चों, प्राइस, वो वाली वैल्यू जो अभी मार्केट में प्रिवेल कर रही है उसको हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। और मार्केट वैल्यू वी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, in terms of, so we are Pakistani, so in terms of rupees. If we are in USA or we are a USA resident, so we can say that dollar. ठीक है। So total cost क्या है, market value of input a firm uses in production। ठीक है, इतनी हमें समझ आ गई। टोटल रेवेन्यू क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है। अब हमने देखना है प्रॉफिट क्या होता है बच्चों। So now we need to move towards profit। अब प्रॉफिट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। It's very simple। टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट निकाल दें तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। यानी कि आउटपुट को सेल करके जितना पैसा हमारे पास आया था उसमें से हमने टोटल कॉस्ट यानी कि सारे खर्चे निकाल दिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। देखिएगा, द फर्म्स टोटल रेवेन्यू माइनस इट्स टोटल कॉस्ट इज नोन एज प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, पेपर में आपको टोटल रेवेन्यू की अमाउंट दी होती है $200 और साथ में आपको दी जाती है टोटल कॉस्ट फॉर एग्जांपल $100 और आपसे पूछा जाता है कि आपका प्रॉफिट क्या होगा, बताएं आप। तो आपको पता होना चाहिए टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर देना टोटल कॉस्ट, यानी कि 200 माइनस $100 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट $100 प्रॉफिट आ जाएगा। ये बात थी हमारी टोटल रेवेन्यू के बारे में, टोटल कॉस्ट के बारे में और प्रॉफिट के बारे में। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इस चैप्टर में वो था कॉस्ट एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि किसके अंडर आती है, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स के अंदर ही एक टाइप की कॉस्ट आती है जिसको हम लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इससे भी चीज की कॉस्ट क्या होती है, कीमत क्या होती है, द थिंग विच यू गिव अप, द अमाउंट विच यू गिव अप टू गेट इट, उसको हासिल करने की जो कीमत आप अदा करते हो उसको कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। अगर हम अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट की बात करें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उसकी 2 टाइप्स हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक तो ये है कि आपने एक चीज़ को हासिल करने के लिए जो उसकी कीमत अदा की। एक चीज़ वो होती है कि जो मैंने पहले भी आपको चैप्टर नंबर 1 में हमने समझाया था, जहां हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जिक्र आया था जब हम 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे वहाँ पे। तो उसमें हमने बात की थी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होती है किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कोई एक ऑप्शन अवेल कर लेना और दूसरे को सेक्रीफाइस कर देना। एक चीज़ हासिल कर लेना और दूसरी चीज़ सेक्रीफाइस कर देना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने 2 ऑप्शन रखे जाते हैं, व्हाट विल यू प्रेफर, यू विल प्रेफर अ बाइक और यू विल प्रेफर एन आईफोन।
अब आईफोन को आप प्रेफर करोगे या बाइक को प्रेफर करोगे, आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। जोन सा गिफ्ट आप लेना चाहो आफ्टर securing good marks in your exam. For example, your parents asked you, if you scored very good marks in your exam, we will give you a gift, which will either be a bike or an iPhone, whichever you likes. ओके इन दोनों में से जो आपको पसंद होगा वो हम आपको एज अ गिफ्ट देंगे अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हो बाइक भी मुझे चाहिए, आईफोन भी मुझे चाहिए, क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रही। ओके यू ऑप्ट फॉर अ बाइक। अब बाइक ले लेते हो, आप आईफोन को छोड़ देते हो। ये क्या हुआ, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आईफोन को छोड़ देना और बाइक को ले लेना। बाइक को हासिल करने के लिए आपने आईफोन छोड़ दिया, तो ये आप आईफोन फॉर एग्जांपल 1.5 लाख का था, वो 1.5 लाख आपने छोड़ दिया और आपने बाइक ले ली, तो वो 1.5 लाख क्या बन गया, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब वो वाली कॉस्ट है जो कि आपकी पॉकेट से नहीं गई, आपने पे तो नहीं की ना। और एक कॉस्ट ऐसी है जो कि आप पे करते हो। फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू बाय वाईफाई डिवाइस, फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू बाय अ वाईफाई डिवाइस एंड you get that okay from a franchise of a Telenor or Jazz and whichever the company you like. आप वो जो है आप ले लेते हो वाईफाई डिवाइस एंड यू पे 4,000 फॉर द डिवाइस टू द सेलर। ठीक है, सेलर को आपने 4,000 पे कर दी और आपने डिवाइस लेके अपने पॉकेट में डाल ली। अब क्या हुआ, 4,000 इज योर कॉस्ट एंड दैट इज दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच यू यूज फॉर द बाइंग ऑफ दैट वाईफाई डिवाइस। इस वाईफाई डिवाइस को खरीदने के लिए आपने जितनी कॉस्ट पे की 4,000 रुपया, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इन अ सेंस। कैसे? इन अ सेंस कि आपने जो 4,000 इस वाईफाई डिवाइस पे लगा दिया, आपने वो कुछ की बुक्स ख़रीद रही थी अपने कोर्स की जो कि आप उससे ख़रीद सकते थे, लेकिन आपने कहा कि चलो मैं कोर्स की जो की बुक्स हैं वो नहीं ख़रीदता, मैं मोबाइल से पिक्चर्स बना के डेली का काम जो है वो कर लिया करूँगा, लेकिन मुझे वाईफाई की अशद ज़रूरत है क्योंकि आजकल क्लासेस ऑनलाइन है, सो इट्स वेरी नेसेसरी फॉर मी। तो ये क्या बन जाएगी, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, एक दफ़ा रीड कीजिएगा। द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। ठीक है, कॉस्ट क्या होती है किसी चीज़ की, जो आप देते हो उसको हासिल करने के लिए। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन आइटम रेफर्स टू ऑल दोज थिंग्स दैट मस्ट बी फोरगॉन टू एक्वायर दैट आइटम। उस आइटम को जो आप हासिल करना चाहते हो, उसको हासिल करने के लिए जितनी ज़्यादा चीज़ें आपने फोरगॉन की, छोड़ दी, ठीक है, जाने दी, उसको हम लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हेन इकोनॉमिस्ट स्पीक ऑफ अ फर्म्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दे इंक्लूड ऑल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग इट्स आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब इकोनॉमिस्ट इसके बारे में बात करते हैं तो वो सारी तरह की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हैं वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो यूज़ होती हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, उसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसको आगे जाके अभी हम मज़ीद डिटेल में बात करेंगे, इसको यहाँ पे अभी इतना ही समझिएगा। सो अभी यहाँ पे हमने बात किस बारे में करनी है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बारे में। अभी मैंने बात की कि आपने वाईफाई की डिवाइस परचेज की, 4,000 रुपया आपने दिया, आपने पैसे पे किए। एक मैंने आपसे बात की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, जो 1.5 लाख रुपया आपको आईफोन की शेप में छोड़ना पड़ गया और आपने बाइक को ले लिया। अब जो बाइक को ले लिया और 1.5 लाख आपने आईफोन का छोड़ दिया, ये आपकी कौन सी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑब्वियसली। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कौन सी ये कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये इम्प्लिसिट जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो आपने अपनी जेब से पैसा दिया, वाईफाई डिवाइस खरीदी, वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है विच यू डायरेक्टली पे। ठीक है, और इम्प्लिसिट कॉस्ट वो है विच यू डू नॉट डायरेक्टली पे, विच यू डू नॉट डायरेक्टली पे इज नोन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, अब आपने आईफोन को छोड़ दिया, अब वो 1.5 लाख का आपको जो फट्टी लग गई, वो उसमें आपका तो कोई हाथ नहीं है। आपने तो एक ऑप्शन के लिए दूसरे ऑप्शन को सिंपली सैक्रिफाइस किया, बेसिकली वो सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट है। तो उस सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। सो देखिएगा, अ फर्म्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में दोनों तरह की कॉस्ट जो है वो यूज होती हैं, एक्सप्लिसिट भी और इम्प्लिसिट भी। एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट आर इनपुट कॉस्ट दैट रिक्वायर अ डायरेक्ट आउटले और आउटफ्लो और एक्सपेंस ऑफ अ मनी बाय द फर्म। ठीक है, डायरेक्टली आप उसको पे करते हो, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, यानी कि 4,000 जो आपने वाईफाई डिवाइस का पे किया। देन कम्स इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट आर
इनपुट कॉस्ट दैट डू नॉट रिक्वायर एन आउटले ऑफ अ मनी बाय द फर्म, जो कि आउटफ्लो या एक्सपेंस या आउटले ऑफ द मनी मतलब पैसे का जाना जो है वो रिक्वायर नहीं करती, उसमें ये रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसमें पैसा कोई आपकी जेब से जा नहीं रहा होता, ठीक है, फिजिकली डायरेक्टली कुछ भी नहीं जाता। यहाँ पे एक और बात समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 लाख रुपया है, $3 लाख आपके पास है। अब $3 लाख से आप जो है वो एक कुकीज़ बनाने वाली फैक्ट्री जो है वो भी परचेज़ कर सकती हो, ठीक है। इसके अलावा $3 लाख जो है अगर आप बैंक में सेव कर दो तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट 5% आप ले सकते हो। अगर 5% सालाना आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है तो आपके हर साल आपको मिलेंगे $15,000। लेकिन आप क्या करते हो, आप वो $3 लाख बैंक में जमा करने की बजाय और 15,000 मंथली लेने की बजाय आप क्या करते हो, कुकी फैक्ट्री परचेज कर लेते हो। अब आपने क्या किया, कुकी फैक्ट्री परचेज कर ली और 3 लाख रुपया आपने लगा दिया। अब ये 3 लाख आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट है और इम्प्लिसिट कॉस्ट आपकी इस सिनेरियो में क्या होगी, वो 15,000 रुपये जो कि इंटरेस्ट की फॉर्म में आपको सालाना मिलना था, वो है आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट जो कि आपने सेक्रीफाइस कर दी, ठीक है। बच्चों पेपर में इस तरह की एग्जांपल भी आ सकती है और आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी है और इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी है, तो आपको सो पता होना चाहिए। सो हेलन uses $300 of her savings to buy her cookie factory from the previous owner. If she had left her money in saving account that pays interest at the rate of 5%, she would have earned $15,000 a year. Helen, by buying a cooking factory, has foregone $15,000 a year and interest income. ठीक है, उसने क्या की, उसने छोड़ दी 15,000 की ईयरली इनकम। सो दिस फोरगॉन ऑफ $15,000 इज एन इम्प्लिसिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ हेलेन्स बिजनेस। ये क्या है, इम्प्लिसिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सो अकाउंटेंट विल नॉट शो दिस कॉस्ट। अकाउंटेंट इस कॉस्ट को, इम्प्लिसिट कॉस्ट को शो नहीं करते क्योंकि डायरेक्टली कुछ भी एक्सपेंस नहीं हो रहा। वो अपनी बुक्स में वो चीज़ रिकॉर्ड करते हैं जो कि डायरेक्टली हो रहा होता है एक्सपेंस, ठीक है। सो इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप इसको देखते हैं। और हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिस्ट एंड अकाउंटेंट कैसे डिफरेंट होते हैं प्रॉफिट निकालने में और किस चीज़ को वो इंक्लूड करते हैं और किस चीज़ को एक्सक्लूड करते हैं। अब इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक प्रॉफिट किस तरह से निकालते हैं, वो टोटल कॉस्ट को टोटल रेवेन्यू में से निकालते हैं और टोटल कॉस्ट में एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी लेते हैं और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी लेते हैं। वो वाली कॉस्ट जो फिजिकली डायरेक्टली पे हुई होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और वो वाली कॉस्ट जो कि डायरेक्टली और फिजिकली पे नहीं हुई होती यानी कि इम्प्लिसिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसको भी वो लेते हैं और तब जाके वो अपना प्रॉफिट निकालते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट। Economists measure firms' economic profit as total revenue minus total cost, and which total cost includes both explicit cost and the implicit cost. ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट निकलता है इसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब दूसरा हमारे पास आएगा अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब अकाउंटेंट, जैसे हमने पहले बात की कि वो क्या करते हैं, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट जो कि फिजिकली इनकर नहीं होती उसको कंसिडर नहीं करते। दे सिंपली माइनस फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दे सिंपली माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू। वो टोटल रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट को सिर्फ निकाल देते हैं और उनके पास आ जाता है अकाउंटिंग प्रॉफिट। देखिएगा, accountant measures the accounting profits at the firm's total revenue minus only the firm's explicit cost। तो इससे वो निकाल लेते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट सिर्फ क्या, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस करके। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग प्रॉफिट जो होता है वो ज्यादा होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट के बदले। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉफिट में हम लोग निकाल देते हैं दो तरह की कॉस्ट, जो हुई होती है और जो नहीं हुई होती, जो सपनों में होती है यानी कि इम्प्लिसिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, वो भी निकाल देते हैं। तो हमारा प्रॉफिट ऑब्वियसली कम होगा, लेकिन अकाउंटिंग प्रॉफिट में हम सिर्फ एक ही कॉस्ट निकालते हैं, सो इसलिए उसका प्रॉफिट ज़्यादा होता है। सो व्हेन द टोटल रेवेन्यू एक्सीड्स बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट द फर्म्स अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट। जब एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट से भी ज़्यादा जब जो रेवेन्यू आता है उस रेवेन्यू को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट। सो इकोनॉमिक प्रॉफिट इज स्मॉलर दैन अकाउंटिंग प्रॉफिट। और ये कैसे स्मॉलर होता है ये मैंने आपको बता दिया है कि उसमें सपनों में आने वाली प्राइस को भी निकाल दिया जाता है। जो सपने में आप देख रहे होते हैं कि मुझे आईफोन चाहिए, मुझे बाइक भी चाहिए, तो वो सपने में से एक चीज़ जो है वो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, ठीक है। तो उस कॉस्ट को भी हम लोग इकोनॉमिक्स वाले प्रॉफिट में, इकोनॉमिक प्रॉफिट में डाल देते हैं। सो ये तो बात हुई इकोनॉमिक प्रॉफिट की और अकाउंटिंग प्रॉफिट की। अब हम इसको फिगर के थ्रू देखते हैं, हमने क्या कैलकुलेट करना है, किस तरह से इकोनॉमिस्ट जो है
वो एक फॉर्म को व्यू करता है। इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे इकोनॉमिक प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट में हमने बात की कि दो तरह की कॉस्ट होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों मिलके बनाती हैं टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जब हम निकाल देंगे टोटल रेवेन्यू में से तो ये बन जाएगी इकोनॉमिक प्रॉफिट, ये बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अकाउंटेंट जो होते हैं वो फर्म को किस तरह से देखते हैं और वो किस तरह से अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालते हैं। वो सिंपली क्या करेंगे, माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सिंपल क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट निकाल देंगे तो अकाउंटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। सो ये था डिफरेंस इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट का। अब हम वही हेलन कुकी फैक्ट्री जो हमने परचेज की थी उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, साइज ऑफ हेलन, हेलन उस लेडी का नाम है जिसने ये कुकी फैक्ट्री परचेज की थी। ठीक है, हेलन की जो कुकी फैक्ट्री है उसका साइज हम लोग फिक्स कर लेंगे, जितनी हमने परचेज की थी एरिया वही रखेंगे, और जो क्वांटिटी ऑफ कुकीज़ प्रोड्यूस है वो चेंज होती जाएगी नंबर ऑफ वर्कर्स, जैसे जैसे हम ज़्यादा लोग हायर करते जाएंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। अगर हमारे पास लोग कम हैं, लेबर कम है, काम करने वाले कम हैं, तो हमारे कम कुकीज़ प्रोड्यूस होंगे। सो दिस assumption इज रियलिस्टिक इन द शॉर्ट रन बट नॉट इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता। कैसा कि क्वांटिटी ऑफ कुकीज़ बढ़ती जाए नंबर ऑफ वर्कर्स को बढ़ाने से। इसको जहन में रखिएगा, आगे जाके हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा नहीं होता। फिलहाल हम लोग किस पे बात करेंगे, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में प्रोडक्शन फंक्शन की। सबसे पहले समझिएगा कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो रिलेशनशिप शो करता है इनपुट्स और आउटपुट्स के दरमियान। बट इस प्रोडक्शन फंक्शन सिंपल अगर आपसे पूछा जाए तो आसान अल्फाज में आप कह सकते हो कि प्रोडक्शन फंक्शन वो रिलेशनशिप शो करता है। प्रोडक्शन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट्स ऑफ अ गुड। सो प्रोडक्शन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स यूज टू मेक अ गुड। एक गुड को बनाने के लिए जो क्वांटिटी, जितनी अमाउंट ऑफ इनपुट यूज हुई वो, एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑफ दैट गुड, और क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हुई, कितनी आउटपुट बनी उस गुड की, उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, जो इन दो चीज़ों के दरमियान में, इनपुट और आउटपुट के दरमियान में रिलेशनशिप शो करे। वो फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, प्रोडक्शन फंक्शन। अब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल आप लोग 100 वर्कर्स को यूज़ करते हुए आप लोग 200 यूनिट्स जो थे वो प्रोड्यूस कर रहे थे कुकीज़ के, या 2000 कुकीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे थे 100 लेबर यूज़ करते हुए। अब आप क्या करते हो, अगर 1 यूनिट ऑफ इनपुट आप इंक्रीज करते हो, आपने एक लेबर और बढ़ा दिया 101, 101 लेबर हो गई आपकी। अब एक लेबर बढ़ाने से आपने देखना है कि आउटपुट पे कितना इफेक्ट आ रहा है, आउटपुट कितनी इंक्रीज हो रही है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट। या एक लेबर बढ़ाने से कितने यूनिट्स ऑफ आउटपुट हमारे इंक्रीज हुए, एडिशनल यूनिट्स आए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट। सो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एनी इनपुट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज द इंक्रीज इन द आउटपुट। आउटपुट में जो इंक्रीज आता है उसको मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं, जो आता किसकी वजह से है, फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट। एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट लगाने की वजह से, यानी कि एक और वर्कर जो हमने बढ़ाया, उस वर्कर को बढ़ाने की वजह से प्रोडक्शन कितनी इंक्रीज हुई, उसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। अभी एक तो टाइम ये आता है कि जब आप जो है वर्कर्स या इनपुट्स जो हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स या वर्कर्स या इक्विपमेंट जब आप बढ़ाते जाते हैं, आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती जाती है। एक टाइम ऐसा आता है जब प्रोडक्शन इंक्रीज होना बंद हो जाती है। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो एक यूनिट ऑफ इनपुट इंक्रीज करने से आपके जो प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा होता है, जो आउटपुट में इंक्रीज आ रही होती है, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। पहले स्टैंड पे जाती है, स्टिल होती है, और फिर एकदम से नीचे आना आहिस्ता 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 शुरू हो जाती है। इसको क्या कहते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, सो डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट इज द प्रॉपर्टी वेयर बाय द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट डिक्लाइंस एज द क्वांटिटी ऑफ द इनपुट इंक्रीजेज। जैसे जैसे इनपुट्स आप इंक्रीज करते जाते हो तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिमिटेड स्पेस है, एक रूम के अंदर आप काम कर रहे हैं, एक रूम के अंदर पहले 10 लोग काम कर रहे थे तो वो इजीली काम कर रहे थे, मैनेज भी कर रहे थे, एक दूसरे की उनको समझ भी आ रही थी, उनके पास स्पेस भी थी। अब आपने उसी रूम में 5 वर्कर्स और एडअप कर दिए हैं। अब आपने इनपुट इंक्रीज की है, अब 5 वर्कर्स इंक्रीज हो गए, मशीनरी आपने इंक्रीज नहीं की, इक्विपमेंट उनके पास कम है, एक काम करता है, करके वो इक्विपमेंट फारिग करता है तो दूसरा पकड़ के उससे काम करता है। तो क्या हो रहा है, इससे आपकी आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रही,
उल्टा डिक्रीज होना शुरू हो गए, क्योंकि बाकियों ने भी काम करना है सब, और फिर कंजस्टेड हो गए हैं इतने ज़्यादा, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, वो ठीक से चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और चीज़ों की क्वालिटी नहीं मैनेज हो रही, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सफोकेशन हो रही है, रशी एरिया बन गया है, नॉइज़ हो रही है, चीज़ों का लोगों के लिए काम करना मुश्किल हो रहा है। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिनकी वजह से प्रोडक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पे हमारे पास क्या एग्जाम्पल है, एज मोर एज वर्कर्स आर हायर, जैसे जैसे फर्म जो है वर्कर हायर करती जाएगी, ईच एडिशनल वर्कर कंट्रीब्यूट लेस एंड लेस टू द प्रोडक्शन। हाँ, जो भी जितने भी एडिशनल वर्कर आएंगे वो कम से कम जो है प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते जाएंगे, अपना हिस्सा कम से कम डालते जाएंगे। क्यों? बिकॉज द फर्म्स हैज़ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट, क्योंकि उनके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट है। फॉर एग्जांपल 10 इक्विपमेंट हैं, 10 मशीन्स हैं जिनके साथ कुकी को शेप दी जाती है, और 15 वर्कर्स हैं हमारे पास, लिमिटेड इक्विपमेंट है। कैसे बाकी वर्कर्स जो हैं वो इज नोन एज डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये बात हमने की डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट की। अब देखिएगा इस प्रोडक्शन फंक्शन को, टोटल कॉस्ट को, इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं एक टेबल के थ्रू। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे देखिएगा नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं हमारे पास। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स शो हो रहे हैं। अब नंबर ऑफ वर्कर्स में देखिए सबसे पहले 0 है, देन 1 2 3 4 5 इंक्रीज होते जा रहे हैं। क्या हो रहा है? नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब सेकेंड कॉलम हमारे पास क्या है? वो है आउटपुट का। अब 0 वर्कर थे, 0 आउटपुट है। देन मार्जिनल प्रोडक्ट जो है एक एडिशनल वर्कर से ऐड करने, मार्जिनल प्रोडक्ट अभी नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री हमें पड़ रही है फॉर एग्जांपल 30। फैक्ट्री मतलब जहां हमारा प्लांट लगा हुआ है उसका हमें रेंट $30 पे करना पड़ रहा है, वो तो हम देंगे ही देंगे, चाहे हमने फैक्ट्री में अभी कोई बंदा हायर किया है या नहीं किया। कॉस्ट ऑफ वर्कर कोई नहीं है, 0 है, क्योंकि अभी कोई वर्कर ही नहीं है। सो टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री प्लस कॉस्ट ऑफ वर्कर। कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री प्लस कॉस्ट ऑफ वर्कर इज नोन एज टोटल कॉस्ट। ठीक है, सो टोटल कॉस्ट इस तरह से निकलेगी। अब देखिएगा 2 जो ये सेकंड रो है, जब हमने एक वर्कर हायर किया, अब आउटपुट हम देखते हैं। एक वर्कर के हायर करने से 50 कुकीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस हुए। एक बंदा कितनी कुकीज़ बना रहा था? 50। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सेम ही रहेगी, ये फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि हमने रेंट पे करना है 30। कॉस्ट ऑफ वर्कर हमें कितनी पड़ रही है? $10। एक वर्कर को हमने कितने पैसे पे करने हैं? $10। अब टोटल कॉस्ट क्या आएगी? कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री प्लस कॉस्ट ऑफ वर्कर इज इक्वल टू 40। ये हमारे पास क्या आ गई? टोटल कॉस्ट। ये वाला कॉलम क्या शो कर रहा है? टोटल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री प्लस कॉस्ट ऑफ वर्कर इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ये वाले 3 कॉलम कॉस्ट को शो कर रही हैं, और ये आउटपुट शो कर रहा है, और ये मार्जिनल प्रोडक्ट को। एक और मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे कैसे है? यहाँ 0 था वर्कर, एक यूनिट बढ़ाने से 50 कुकीज़ नए प्रोड्यूस हुए, तो ये क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ लेबर। अब मज़ीद आगे करते हैं तो इससे हमें समझ आएगी। यहाँ पे एक लेबर था, अब हमने 2 लेबर कर दिए। अब 2 लेबर कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं? पहले एक 50 प्रोड्यूस कर रहा था, अब 2 लेबर जो है वो 90 प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, 90 कुकीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या था? पहले 50 था, अब 90 है। 50 और 90 का जो डिफरेंस है, यानी कि एक वर्कर बढ़ाने से, एक वर्कर से हम जब दूसरे वर्कर पे गए, एक वर्कर हमने यहाँ बढ़ाया तो वो 50 से 90 पे चली गई आउटपुट, तो 50 और 90 का जो फ़र्क है वो 40 है। एक वर्कर के बढ़ाने से 40 और कुकीज़ प्रोड्यूस हुई, क्योंकि 50 तो पहले ही हो रही थी। तो एक नया वर्कर जब हमने बढ़ाया यहाँ पे, तो उसके बढ़ाने से 40 नई कुकीज़ प्रोड्यूस हुई। ये मार्जिनल प्रोडक्ट है। और फिक्स्ड कॉस्ट हमारी वही रही 30। और अब 2 लेबर हैं, दोनों के अब हमें $10 पे करने पड़ेंगे, तो 20 हो गया। अब 30 + 20 50। टोटल कॉस्ट हमारी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, इसी तरह हम लोग बाकी टेबल जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब ये कंप्लीट हुआ टेबल। इसमें देखिए कि आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है नंबर ऑफ़ लेबर्स के इंक्रीज़ करने से। लेकिन आप ये देखें कि पहले 50 एक जो हमने लेबर इंक्रीज़ की, उससे 50 हमारी कुकीज़ इंक्रीज़ हुए। फिर हमने सेकंड लेबर को इंक्रीज़ किया तो 90 हुए। असूलन 50 होने चाहिए थे, 50 ही इंक्रीज़ होने चाहिए, यानी कि यहाँ 100 होना चाहिए था। लेकिन क्या हो रहा है कि कम होती जा रही है, 90। दैन हमारे पास 120 और हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट 30 है। आप देख रहे हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट इस तरह से डिक्रीज होता जा रहा है नंबर ऑफ वर्कर्स को इंक्रीज करने से। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट सेम है, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ये फिक्स्ड कॉस्ट है। ये कॉस्ट ऑफ वर्कर्स है जो हमें इनकर करनी पड़ रही है, वो इंक्रीज होती जा रही है। और टोटल कॉस्ट जो है हमारी, वो देखिएगा वो भी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है,
अब हमने बात की थी प्रोडक्शन फंक्शन होता है इनपुट्स का और आउटपुट्स का आपस में रिलेशनशिप जो शो करता है। आउटपुट्स हमारे पास क्वांटिटी ऑफ कुकी प्रोड्यूस ये, और इनपुट्स हमारे पास ये है टोटल कॉस्ट। इनका आपस में जो रिलेशनशिप होता है वो हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन। सो प्रोडक्शन फंक्शन को देखिएगा, अब इसको हमने ड्रॉ करना है, टेबल को देखिएगा। पहले हमने क्या करना है, 1 पे नंबर ऑफ वर्कर हायर जब 1 हुआ, एक जब वर्कर हमने हायर किया तो एक वर्कर की कॉस्ट हमें कितनी पड़ रही थी, एक वर्कर की कॉस्ट हमें पड़ रही थी 10, और उससे हमारे यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हो रहे थे, यानी कि हमारी आउटपुट क्या थी, वो 50 थी। 50 किस तरह से थी कि 50 कुकीज़ प्रोड्यूस हो रहे थे। फिर हमने एक वर्कर और इंक्रीज किया और हम 2 पे आ गए। 2 पे जब अब हम आए तो अब हमारी क्या थी, 90 थी, 90 आउटपुट थी। अब आप देख रहे हैं कि इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप हम ड्रॉ कर रहे हैं। 50 और 90 लेफ्ट साइड पे जो है ये डिनोट कर रहा है, ये शो कर रहा है व्हाट, वर्कर्स, नंबर ऑफ कुकीज़ प्रोड्यूस्ड, और जो हमारे नीचे हॉरिजॉन्टल साइड पे है ये जो है ये नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स हायर्ड। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स इनपुट हैं, और हमारे पास आउटपुट क्या है, नंबर ऑफ कुकीज़ प्रोड्यूस। इसी तरह से आप देखिए जब हमने 3 वर्कर्स किए तो हमारे पास 120 आई आउटपुट, और जब हमने 4 और 5 किए हमारे पास 140 एंड 150 आई जो है कुकीज़ की वैल्यू। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये वर्कर्स। अब हम ये जो डॉट्स हैं इनको हम लोग आपस में इस तरह से मिला देंगे तो हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन आ जाएगा जो कि रिलेशनशिप शो करेगा किसका, आउटपुट का और इनपुट का। ये जो हमने अभी कर्व ड्रॉ किया है ये क्या है, ये प्रोडक्शन फंक्शन है। इस तरह से प्रोडक्शन फंक्शन को ड्रॉ किया जाता है और ये इसका मीनिंग होता है। ये देखिए प्रोडक्शन फंक्शन साथ में मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो रही थी प्रोडक्शन फंक्शन की, टोटल रेवेन्यू की, आउटपुट की, इनपुट की, टोटल कॉस्ट की। ठीक है, और हमने बात की डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट की। डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट की हमने क्या बात की कि ये प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट किसी भी इनपुट का वो डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, या क्वांटिटी ऑफ इनपुट जो है जब इंक्रीज होती है तो आउटपुट जो होती है वो क्या हो जाती है, वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे इनपुट आप बढ़ाते जाते हैं तो आपकी आउटपुट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है एक सर्टेन पॉइंट के बाद।